This is chapter 4 from your textbook, supplementary textbook, Moments. The chapter name is In the Kingdom of Fools, and this is the second video in that chapter. Until now we have read about king and his ministers, which also are fools. That king also is a fool. They have decided to run their country in contrast or in a different manner as compared to the other kings do. They have decided and also set an order that all the things which are done at day will be done at night, and all the people will have to sleep in day. This order has been executed, and it has also been said that if a person denies it or disobeys the order, then he will be prosecuted or executed with death. So everyone in that country or in that state, because of the fear of his life, they decide that they will follow the rule, and the country is doing so. One day a disciple and his guru arrives in the city, and they see everyone sleeping, none of them, even the cattle were not on the road. They have also been taught to sleep at day. But suddenly as the evening falls or the night falls, everyone awakes, the whole city comes to life, and they come to even more surprise when they see that everything they are purchasing is costing them only one daddu. Daddu is the currency of their country. So the disciple is very greedy. He thinks that what a country it is, I have to pay only one daddu for everything that I eat. So he decides to live in that country. But the guru, he is a wise man, and he decides, or he thinks that this country is full of fools and it can lead to very disastrous situations. So he decides to go away from the country, go away from the state. He advised his disciple also, but he was in his greed that he is going to get cheap food. So he finally leaves his disciple there and goes away. Now the condition changes, and the disciple is now become very fat. You must remember, आपको इस चीज को याद रखना है कि वो काफी मोटा हो गया है खाकर. Now a second scenario is arising there. A thief has broken into a merchant's house. एक व्यापारी के घर में एक चोर घुसा है. चोरी करते हुए जब वह बाहर निकल रहा था तो वह उसके ऊपर दीवार गिर गई है. वह मर गया है. उसका भाई राजा के पास गया and says that my brother was pursuing our business, our home business, and because of this merchant's weak wall, okay, because of this merchant's weak wall, my brother has died, so he must be punished. The king also follows his words, and he is so fool, think of it, he is so fool that he also comes under the observation that the merchant is to be punished. So first of all he calls the merchant says that, sir, if this brick or this wall has not been prepared by me, it has been prepared by the bricklayer, so it's the fault of the bricklayer. The bricklayer has been now called on, and he has been ordered for execution. He has been ordered to be punished by death. उसे मृत्यु दंड दिया गया है. अब कहानी में आगे. इससे पहले कि राजा के आदेश का पालन किया जाता, before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It is true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. Now once again, now the bricklayer has tried to convince the king that it was not his fault. तो इससे पहले के आदेश को पालन किया जाता, वो ब्रिकलेयर जो है वह गिड़गिड़ाता है, कहता है, महाराज पहले तो मेरी बात सुन लीजिए.
अच्छी तरह से याद है कि एक डांस करती हुई लड़की थी जो सारा दिन मेरे सामने की सड़क पर बार बार आना जाना कर रही थी और उसकी पायल बज रही थी, एंकलेट्स जिग रही, पायल बज रही थी। मेरा ध्यान और मेरी आंखें दीवार पर नहीं टिक सकी जो मैं बना रहा था। तो आपको पहले तो उस लड़की को बुलाना चाहिए जहां मैं जानता हूं वो कहां है। You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. तो वो राजा, यहाँ पर उसकी मूर्खता देखी वो और बढ़ती जा रही है। वो राजा कहता है कि तुम सही हो, ये जो केस है ये तो और गहराता ही जा रहा है, मुझे इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस जज करना बहुत आसान नहीं होता। चलो उस नृत्य वाली लड़की को ले आओ जहां पर भी है। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. वो जो लड़की है अब उसकी उम्र हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है, वह कांपती हुई राज दरबार में आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो राजा ने पूछा कि तुम बहुत वर्षों पहले उस सड़क पर बार बार आना जाना कर रही थी जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था, क्या तुमने उसे देखा था? Yes, my lord, I remember it very well. वो कहती है हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद। So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. वो कहता है राजा कि हाँ, तो तुम जो है सड़क पर बार बार आना जाना कर रही थी अपने पायल को बचाते हुए। ये तुम जो है उस समय यंग थी और तुमने उसका ध्यान भटका दिया, इसलिए इसने ये दीवार खराब बना दी। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. वो राजा कहता है कि वो तुम्हारे कारण इसने दीवार खराब बनाई, वो दीवार जो है इस बेचारे चोर पर गिर गई है। देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, वो बार बार उसे बर्गलर कह रहा है, वो उसे चोर कह रहा है, लेकिन फिर भी उसे वो कल्प्रिट नहीं मानता। तो वो कहता है कि देखो तुम्हारे कारण ये जो दीवार है इस बेचारे चोर पर गिर गई और वो मर गया, तुमने एक इनोसेंट मासूम व्यक्ति की हत्या की है, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। She thought for a minute and said, "My lord, wait, I know why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it. He would give it now and he would give it then, and so on all day." वो थोड़ी देर सोचती और कहती है, महाराज, मैं जानती हूँ कि मैं उस दिन क्यों बार बार सड़क से आना जाना कर रही थी। मैंने कुछ सोना दिया था सुनार को गहने बनाने के लिए। वो एक आलसी ठग था, ठीक है, स्काउंड्रल, लेजी आलसी स्काउंड्रल ठग था। वो बहुत सारे बहाने बना रहा था। वो कहता मैं अभी आपको दे देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद दे देता हूँ, यह कहते हुए उसने मुझे सारे दिन वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times. और वो मुझे दर्जनों बार उसके घर पर आना जाना पड़ा। That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damn goldsmith fault. तो वो कहता है कि उसी दौरान इसने मुझे देखा है और ये मेरी गलती नहीं है महाराज, ये उस सुनार की गलती। Poor thing, she is absolutely right, thought the king. When the evidence we have got the real culprit at last, get that goldsmith wherever he is hiding at once. वो कहता है बेचारी लड़की, वो बिल्कुल सही कह रही है, राजा कह रहा है, वो सोच रहा है कि बेचारी लड़की ये बिल्कुल सही कह रही है, अब हमें सबूत मिल गया है, हमें आखिरकार असली गुनहगार मिल गया है, उस सुनार को जहां भी छुपा हुआ है पकड़कर ले आओ। The king barely searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop and he heard of accusation against him. He had his own story to tell. राजा के जो मंत्री है या जो सैनिक है वो उसको खोज करने लगे। वो अपनी दुकान के ही कॉर्नर में छुपा हुआ था। जब उसको पता चला कि उसके खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं तो उसके पास एक अपनी कहानी थी कहने के लिए। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish her jewelry before
finished the rich merchant's order, they had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. वो कहता है कि महाराज मैं एक गरीब सुनार हूं। ये सच है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर आने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने बहाने इसलिए बनाए क्योंकि मैं इसके गहनों को सही समय पर बना नहीं पा रहा। कारण क्योंकि उससे पहले मुझे एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था। उन लोगों के घर में एक शादी आ रही थी और वो इंतजार नहीं करना चाह रहा था। आपको तो पता ही है महाराज कि ये अमीर लोग कितने अधैर्यवान होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं ना। जब खोजा गया who is the rich merchant who kept you from finishing the poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on innocent man and killed him. अब देखिए यहाँ पर कहानी किस तरह से बढ़ रही है। वो कहता है कौन है वो अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें अपने काम को पूरा करने से रोका, जिसके कारण इस महिला को बार-बार सड़क पर आना जाना पड़ा, जिसके कारण इस ब्रिकलेयर का ध्यान भटका, जिसने इस दीवार को खराब कर दिया और जो अब एक बेचारे व्यक्ति के ऊपर गिर गया है और वो मर गया है। क्या तुम उसे बुला सकते हो? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant when he was rudely summoned back to the court here and cried, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent." तो सुनार ने जब नाम बताया वो नाम निकला उसी व्यापारी के पिताजी का जिसकी दीवार गिरी थी। तो वो राजा कहता है कि अब न्याय का पूरा चक्र पूरा हो चुका है और ये घूम करके उसी व्यापारी पर चला गया है, इसलिए इस बार उसको बहुत ही रूडली, बहुत ही कठोरता के साथ कोर्ट में वापस बुलाया गया। वह रोता हुआ आता है, कहता है महाराज वो दीवार तो आखिर मतलब वो ज्वेलरी तो मेरे पिता ने बनवाई थी, मैं तो नहीं था, वो मृत्यु हो चुके हैं, मैं इनोसेंट हूं, मैं मासूम हूं, मुझे माफ कर दिया जाए। But the king consulted his ministers and ruled decisively. It's true, your father is the true murderer, he is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set my eyes on you, that you were the root of this horrible crime. You must die. राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया और उसने आखिरकार फैसला क्या किया कि ये सच है कि तुम्हारे पिता जो है वो एक असली हत्यारा है, वो अब मृत हो चुके हैं, लेकिन किसी न किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने अपने पिता से हर चीज प्राप्त की है, इनहेरिटेड है ना, हर चीज प्राप्त की है, तो तुमने उनसे उसके रिचेस, संपत्तियां और उसके वो दुर्गुण भी प्राप्त किए हैं। मैंने तो जब पहली बार तुम्हें देखा उसी समय मुझे पता चल गया था कि ये जो क्राइम है इसके जड़ में तुम ही हो, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। He ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense, the king too worried about it. तो एक नया स्टेक का ऑर्डर किया गया उसकी हत्या करने के लिए। स्टेक बताते हैं क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ स्टेक, ठीक है। यहाँ से एक धारदार औजार होता है जो नीचे गिरता है लोगों का, यहाँ पर शरीर को रखा जाता है, ये गर्दन पे गिरता है और गर्दन कट जाती है। दिस इज कॉल्ड अ स्टेक। ये पुराने समय में लोगों को मृत्यु दंड देने का एक तरीका था। एक नया स्टेक ऑर्डर किया गया था इस सजा को देने के लिए, और जब सर्वेंट्स
जो नौकर हैं वो उस हथियार को धार कर रहे थे, तेज कर रहे थे। जब उस हत्यारे की सजा दी जानी थी तो उन लोगों को ये पता चला कि वो जो व्यापारी है वो बहुत पतला है, उसकी गर्दन उस स्टेक के लिए बहुत पतली थी, इसलिए उसको सही तरीके से सजा नहीं दी जा सकती थी। इसलिए ये फैसला किए राजा के कॉमन सेंस पर ये फैसला छोड़ दिया गया। राजा को भी इस बात की फिक्र होने लगी कि यदि ये स्टेक ऐसा है जिसमें व्यापारी को सजा नहीं दी जा सकती है, सही तरीके से सजा नहीं दी जा सकती है, इस बात की फिक्र राजा को भी होने लगी। तो फिर उन लोगों ने चर्चा की आपस में। उन्होंने कहा, What shall we do? He said. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent over the town to looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and peas and wheat and ghee. उन लोगों ने तय किया कि क्या करना चाहिए। तभी उनके दिमाग में आया कि उन लोगों को केवल एक ऐसा गर्दन चाहिए जो काफी मोटा हो और ताकि वो स्टेक में फिट हो सके। सारे नौकरों को उसी समय पूरे शहर में भेज दिया गया ताकि एक ऐसे व्यक्ति को खोजा जा सके जिसकी गर्दन उस स्टेक में फिट हो। और तभी उनकी नजर उस शिष्य पर पड़ती है जो इतने महीने में खा खाकर मोटा हो गया था। वो केला, राइस, घी ये सब खा खाकर काफी मोटा हो गया है। तो यहां तक में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो राजा ने चोर को बेचारा मान लिया, इनोसेंट मान लिया, उसका हत्या हुआ इस बात को उसने मान लिया। तो पहले उसने व्यापारी को तय किया, फिर व्यापारी ने बताया कि दीवार बनाने वाले की गलती है, जो क्योंकि दीवार कमजोर बनाई, तो दीवार बनाने वाले की गलती है, तो फिर दीवार बनाने वाले को खोज कर लाया गया। तो उसके बाद फिर दीवार बनाने वाले ने बताया कि क्योंकि वह एक लड़की के कारण जो उसके सामने बार बार आना जाना कर रही थी, उस लड़की के कारण उसका ध्यान भटका और उसने गलत दीवार बना दी, तो उस दोष उस लड़की का है। उस लड़की को फिर राजा ने खोज कर बुलवाया। उस लड़की ने कहा कि मुझे बार बार आना जाना इसलिए पड़ रहा था क्योंकि जो सुनार सड़क के दूसरी ओर रहता है वो बार बार मुझे गहने के लिए भटका रहा था। मैंने उसे कुछ सोना दिया था बनाने के लिए गहने, लेकिन वो बार बार मुझे बेवकूफ बनाकर कह रहा था अभी दे दूंगा, थोड़ी देर बाद दे दूंगा। इस कारण से मुझे कई बार उसके घर आना जाना पड़ा। तो गलती गोल्डस्मिथ की है, सुनार की है। तो फिर सुनार को बुलवाया गया। सुनार ने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस लड़की को मुझे बार बार टालना इसलिए पड़ रहा था क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति का, एक अमीर व्यापारी का गहना बना रहा था जिसके बेटे की शादी होने वाली थी और वह बिल्कुल ही इम्पेशेंट था, उसको बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। इस कारण से मैं इस लड़की को समय पर गहने नहीं दे पाया, इसलिए गलती उस अमीर व्यापारी की है। जब उस व्यापारी को खोजा गया तो पाया गया कि जो पहला व्यापारी था जिसकी दीवार गिरी थी, ये व्यापारी उसी का बाप था। तो राजा ने आखिरकार ये फैसला कर ही लिया कि न्याय हो चुका है और न्याय का चक्र घूमकर वापस उसी व्यापारी पर चला आया है जिसके बारे में उसने पहली बार में फैसला लिया था, और इसलिए उसने उसे मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। लेकिन जब उसे मृत्युदंड देने के लिए एक स्टेक खरीद कर लाया गया और स्टेक को जब धार लगाया जा रहा था तो उन लोगों ने पाया कि वो व्यापारी उस पर सजा दिए जाने के लिए काफी पतला दुबला है और इस कारण से एक ऐसे व्यक्ति को खोजा जाना चाहिए जिसकी गर्दन उस स्टेक पर फिट हो सके। तो हम देख पा रहे हैं कि ये कहानी कहां से कहां चली आई है। चोर को पहले तो चोर को छोड़ा गया, फिर व्यापारी भी छोड़ा गया, फिर वो ब्रिकलेयर भी छोड़ा गया, फिर वो महिला भी छोड़ी गई, फिर वो सुनार भी छोड़ा गया और आखिर में फिर से वो व्यापारी छूट ही गया। आखिर में एक ऐसा व्यक्ति खोज निकाला गया जिसका इस सजा से, जिसका दूर दूर तक कोई भी जो संबंध है इस केस के साथ नहीं है,
और केवल उसे इसलिए सजा देने के लिए तय कर दिया गया क्योंकि उसकी गर्दन उस स्टेक पर काटे जाने के लिए बिल्कुल फिट। इसके बाद का सेक्शन हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू फॉर